جوڑے پل الطاف کالونی میں نوجوان کے قتل کا ڈراپ سین۔ کزن نے اپنے کزن کو تاوان کے لیے اغوا کیا، 15 لاکھ روپے تاوان نہ ملنے پر قتل کر دیا۔ مقتول کے بھائی عاصم کا کہنا ہے کہ ثاقب کے نمبر سے 15 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی کالز آ رہی تھیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ شمالی چھاؤنی کی حدود اور الطاف کالونی میں 29 تاریخ کو اغوا ہونے والا 25 سالہ ثاقب کی گزشتہ رات ان کے قریبی رشتہ داروں کے گھر سے جو ہے وہ لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ کے لاش کو جو ہے وہ تحقیقات اور فرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے وہ مردہ خانے منتقل جو ہے وہ کرتی ہے۔ اس وقت مقتول ثاقب کے بھائی میرے ساتھ اس وقت عاصم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ 29 تاریخ کو آپ کے مطابق کہ آپ کا بھائی اغوا ہوا تھا، مقدمہ 30 کو ہوا، کس طریقے سے سارا واقعہ ہوا اور آپ کو اطلاع ڈیڈ باڈی کی کیسے ملی؟ کیا وجوہات ہے اسامہ کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا؟ سر مجھے بالکل نہیں پتہ کہ یہ کیا معاملات ہوئے ہیں اور کس طرح ہوئے ہیں۔ یہ آپس میں کزن تھے، ٹھیک ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا تھا اسامہ۔ تو 29 تاریخ والے دن یہ یہاں سے میرے گھر سے اغوا ہوا ہے، میرے گھر سے بلایا گیا ہے، باہر بلا کے تو اسے اغوا کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ تین سے چار دن بعد جو ہے نا مجھے ڈیڈ باڈی کل جو ہے نا اس کی ملی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ملزم کو جو ہے گرفتار کر لیا، ملزم کے حوالے سے کوئی بیان کہ اس نے کس طریقے سے تشدد کیا؟ اسامہ نے 29 یہ 29 تاریخ کو ہی جس رات یہ میرا بھائی یہاں سے غائب ہوا ہے، اس تاریخ کو ہی جو ہے نا اس کا قتل ہو گیا تھا، 29 تاریخ کو ہی۔ تو یہ میسیج جو ہے نا یہ ثاقب بن کے میسیج ہمیں کرتا رہا، ورگلاتا رہا ہمیں، اس وجہ سے کہ اس بیس پہ کہ یہ ہمیں پیسے دیں اور میں یہاں سے گھر سے بھاگوں۔ ملزم اسامہ کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جو مقتول ثاقب کی خالہ کا جو ہے وہ بیٹا تھا۔ آپس میں جو ہے وہ ان کی کافی قرابت داری تھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی ساتھ تھے۔ عاصم کے مطابق، مقتول کے بھائی کے مطابق، ثاقب کو جو ہے وہ تشدد کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم گرفتار ہے، اس سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے گھر والے بھی کیا اس کے ساتھ ملوث ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے زین علی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہنجروال ملتان روڈ پر ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہر میں بھائیس تانے بنائے جا رہے ہیں، 15 کی کالز میں کمی آئی ہے۔ بچوں کے والدین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کر لیں، بچوں کو حوالات بھیجنا ہے یا پھر لائسنس بنا کر دینا ہے۔ شاہزیب شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے تھانہ ہنجروال کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے تھانے کے مختلف شعبہ جات اور کمروں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات عامر میر، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی پی او لاہور سمیت دیگر آفیسر بھی موجود تھے۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پولیس کی پرفارمنس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کے تھانوں کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں ایک دن میں 24,000 ڈرائیونگ لائسنس بن رہے ہیں۔ والدین فیصلہ کر لیں، بچوں کا لائسنس بنوانا ہے یا انہیں حوالات میں بند کروانا ہے۔ آج لاہور میں، صرف لاہور میں آج سے مہینہ پہلے 250 لائسنس پر ڈے بنتے تھے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں 24,000 سے اوپر ہے، 24,800 ایک دن میں بنے۔ اور آج سے یہ 15-20 دن، مہینہ پہلے جب کریک ڈاؤن نہیں کیا تھا، یہ 250 تھے پر ڈے۔ پیرنٹس خود خیال کر لیں کہ بچوں کو تھانوں میں بند کرانا ہے یا ان کے لائسنس۔ سیف سٹی کے ای چلان بھی بھرپور طریقے سے شروع ہو گئے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو وہاں سے بھی آئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لاہور شہر میں 22 نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں، 18 تھانے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر میں 15 کی کالز میں کمی آئی ہے، اب پولیس کلچر میں بھی تبدیلی آئے گی۔ سیف سٹیز منصوبے کو مزید 16 شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تمام شہروں کے لیے CCTV کیمرے خریدیں گے۔ امید ہے اگلا آنے والا وزیر اعلیٰ مزید محنت سے کام کرے گا۔ محکمہ پولیس کو بہتر کرنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ 18 تھانے باقی پنجاب میں جو لسٹ علی صاحب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بھی یہ پروسیس ہے۔ 1 ارب سے اوپر صرف ہم ایک آدھا ایونٹ جو سال میں ہوتا تھا تو اس کا کیمروں کا کرایہ ہر سال دے دیتے ہیں۔ تو ہم تقریباً 1-2 سال کے اس میں ہم یہ سارے ڈسٹرکٹس کو ہم ایک دفعہ کے لیے ونس فار آل خرید لیں گے اور ہمارا سیف سٹی کا پراپر پروجیکٹ ہے۔ تھانوں کی عمارتوں کو جدید طرز کے مطابق تو بنایا جا رہا ہے، امید کی جاتی ہے کہ پولیس کلچر میں بھی نمایاں بہتری آئے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔
खबर दें आपको, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन के मुस्बत असरात। एक दिन में 74,000 से ज़ायद लाइसेंस जारी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने तारीख रकम कर दी। सबसे ज़्यादा लाहौर में 24,000 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग कहते हैं कि लाइसेंसिंग सेंटर्स पर अमले की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में 74,000 ज़्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम की है। जिसमें IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर में मीटिंग सेंटर जो है वो कैंप कर दिया। इस वक्त एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मीटिंग सेंटर के कैंप के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चलान की कारकर्दगी का जायजा जो है वो लम्हा बलम्हा हासिल किया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि जो लाइसेंस की वजह से जो सख्ती की गई है उसकी वजह से शहरी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में जो है वो लाइसेंस का बनाने के लिए रुख कर रहे हैं। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लर्नर परमिट, लाहौर में 24,000 से ज़्यादा लाइसेंस जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो बनाए गए हैं। इस वजह से तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस से कहना है कि एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग ने CTO लाहौर कैप्टन रिटायर। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। छुट्टी के रोज़ भी शहर में स्मोक का राज बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइए आज के मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिए हैं और यही देखा जा रहा है कि आज स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज़ करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो कैनाल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मिस्री शाह के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि स्मोक की औसत शरह में एक बार फिर से ख़तरनाक हद तक जो है वो इजाफा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के बाइस पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि स्मोक की सूरत हाल का एक बार फिर से जायज़ा लिया जाएगा और स्मोक की सूरत हाल के तनाजुर में रहते हुए इक़दामात जो हैं वो तजवीज़ किए जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जो तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करके घरों से बाहर निकलें। तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जबकि स्मोक को जो बढ़ाने वाले अनासिर हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो यही देखा जाएगा कि स्मोक की सूरत हाल में इसी तरीके से एक बार फिर से इजाफा ही होता हुआ दिखाई दे रहेगा। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए मौसम के हवाले से तो सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर में मीठी मीठी धूप जो है वो महसूस की जा रही है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ताहाल शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। बहुत शुक्रिया सामिया। बात कर रहे हैं स्मोक की तो आपको बताएं माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे नहीं चलेंगे। रिक्शों को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। इंसदादे समोक के लिए इदारों की मुबैना कोताही सामने आ गई। गुज़श्ता बरस इंसदादे समोक वर्किंग कमेटी की सिफारिशात धरी की धरी रह गई। साल भर हुकूमती इदारे समोक तदारुक के बजाय समोक का इंतजार करते रहे। निगरान पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेहतरी के लिए सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। लाहौर की सड़कों पर चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे नहीं चलेंगे। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक्शन प्लान बना लिया। लाहौर में चलने वाले चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग, 30 दिन बाद रिक्शों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। गैर कानूनी मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे बनाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। गैर मंजूर शुदा रिक्शों को पहले बड़े शहरों में बंद किया जाएगा, दूसरे मरहले में छोटे शहरों और देही इलाकों में बंद किया जाएगा। चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी। चिंची रिक्शे की रजिस्ट्रेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। कैमरामैन इकराम शाह के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक की सूरत हाल से निमटने के लिए बात कलीलुल मुद्दती इकदाम से आगे ना बढ़ सकी। आइंदा बरसों के दौरान भी हालात में ज़्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं है। माहिरीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने को अहम तरीन करार दे दिया। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए।
2017 के बाद से तो स्मॉग ने जैसे लाहौर में मुस्तकिल बुनियादों पर ही डेरे डाल लिए हैं। हर साल के इख्तितामी महीनों के दौरान ये अफरियत सर उठाता है और शहरियों की जिंदगी अजाब बन जाती है। रवां साल भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावुज कर जाना मामूल बन चुका है। अमर वाक़या ये है कि स्मॉग के मसले से निमटने के लिए सिर्फ कलीलुल मुद्दती इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। फैक्ट्रीज उनको ठीक करवाएं, उसके अंदर स्क्रैबर लगवाएं, उसके अंदर R&D हर फैक्ट्री के लिए जो ज़रूरी होता है, जब लाइसेंस देते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन चीज़ों करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लाहौर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के साथ साथ शहर के बेहंगम फैलाव को रोकने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाना होंगे। अगरचे तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश जैसे इक़दामात से सूरत हाल में वक्ती तौर पर तो बेहतरी आ जाती है, लेकिन इनका देर पा फ़ायदा नहीं हो पाता, अगरचे हुक्काम का दावा मुख्तलिफ है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो उसमें रिलेटिवली कम था, अगर हम अक्रॉस द डेज़ देखें, इन मंथ्स के दरमियान देखें, लेकिन बहरहाल इस पर और मज़ीद स्टेप्स भी लेने चाहिए। इसी के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी हैं। उनके ऊपर वर्किंग भी हो रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस का वर्किंग है। ज़रूरी है कि इस हवाले से अवामी सतह पर भी शऊर पैदा किया जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ पर हुकूमतें ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, तो फिर पॉलिसियों में तसलसल कहाँ से आएगा? और इसी अदम तसलसल का नतीजा है कि आज हम स्मोक समेत बेशुमार ऐसे मसाइल का सामना कर रहे हैं जिनका बज़ाहिर कोई हल ही दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। डेटा के गलत इंदराज पर कंप्यूटर ऑपरेटर नौकरी से फारिग, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। माइक्रो प्लान के मुताबिक काम करने वाले पोलियो वर्कर्स को मज़ीद 10 दिन की सैलरी देने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस इजलास के बारे में। आज बिल्कुल इंसदाद पोलियो मुहिम कैचअप डे का आज दूसरा रोज़ है। DC लाहौर राफिया हैदर की सदारत इजलास हुआ है। पोलियो मुहिम का जायजा इजलास में फैसले किए गए हैं। डेटा के गलत अंदाज पर कंप्यूटर ऑपरेटर को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दिया है। इंक्वायरी करने का भी हुक्म दे दिया गया है, जबकि माइक्रो प्लान के मुताबिक काम करने वाले पोलियो वर्कर्स के मजीद 10 दिन की सैलरी देने की हुक्म हदायत की है। जबकि DC लाहौर का ये कहना है कि पोलियो मुहिम को पोलियो वर्कर्स पर कामयाबी बनाते हैं, जबकि लगन और तवज्जो से काम जारी रखेंगे। 5 रोज़ा मुहिम में 19,07,932 रह जाने वाले बच्चों को कवर किया जाएगा, जबकि कैचअप डे में पहले दिन 72,254 बच्चों को खतरे पाए गए हैं, जबकि पहले 5 रोज़ में 20,54,674 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए थे। 33 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए हैं। पोलियो मुहिम को कौमी फरीज़ा समझते हुए सब मिलकर अपना किरदार अदा करें। वालिदैन अपने बच्चों को हर बार पोलियो के 2 खतरे लाजमी पिलाएं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान। आपको बताएं, मौसम सरमा के आते ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। टाउनशिप के रिहायशी गैस की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकाम के खिलाफ नारेबाजी, वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुक्मरानों ने कीमत तो बढ़ा दी मगर गैस फ्राहम नहीं की जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। फ़हद से भी इस बारे में मज़ीद जानेंगे। आपको आगाह करें, मौसम सरमा के आते ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। टाउनशिप के रिहायशी गैस की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुक्मरानों ने कीमत तो बढ़ा दी मगर गैस फ्राहम नहीं की जा रही। खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की। मोहसिन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जो है वो मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 21 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की और इस वफ्द ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट
5 गुना बढ़ाने के लिए जो है वो काबिल अमल जो प्लान है वो तलब करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत से भी रब्ता किया जाएगा और मीट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ने से फार्मर खुशहाल होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की काबिल अमल तजावीज़ पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। इस मौका पर उनको ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान से $500 मिलियन मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है और लाहौर से $300 मिलियन जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और मीट एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल और एक्सपोर्ट को $5 अरब की मालियत तक बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब के पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम जारी। 7 पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे के लिए 10.5 लाख रुपए जारी किए गए। लाहौर के कांस्टेबल अमार यूनुस को इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक को जिगर के इलाज के लिए 2 लाख रुपए जारी किए गए। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए जो इक़दाम हैं वो जारी हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 7 मुलाजमीन को हेल्थ वेलफेयर के लिए मेडिकल अखराजात के लिए मज़ीद 10,04,000 रुपये जारी किए हैं। जिन एहलकारों को जो है वो फंड जारी किए गए हैं इनमें लाहौर के कांस्टेबल मोहम्मद अमार यूनुस को बाजू के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा कांस्टेबल मोहम्मद अरशाद को बेटे के आंखों के इलाज के लिए 2,04,000 रुपये जो है वो जारी किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान के कांस्टेबल रहीन रमज़ान को बेटी के आंखों के इलाज के लिए 1,70,000 रुपये जो है वो जारी किए गए। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद शफी को जिगर के इलाज के लिए 2 लाख रुपये दिए गए। शेखुपुरा के इंस्पेक्टर मोहम्मद इफ्तिखार को आंखों के इलाज के लिए 1 लाख रुपये जो है वो जारी किया गया। आज जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजदूरावाला केसेस जो अवार्ड कमेटी ने जो है वो फंड अजरा करने के लिए बुलाई थी, उस पर आज पंजाब ने अहकाम जारी किए हैं। साल से आज पंजाब का ये कहना है कि टीबी मिसाल से जो 4 एहलकारों को इलाज में जो है वो हर मुमकिन मावनत जो है उनको फराहम की जा रही है। उनका मज़ीद कहना था कि जो तमाम जो मुतहद अफसरान हैं, एहलकार हैं, इनके हेल्थ और वेलफेयर के लिए जो रोजाना की बुनियाद पर कमेटी जो भी रिपोर्ट्स जाती हैं उसके मुताबिक जो है वेलफेयर के जो फंड हैं वो जारी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। कस्टम्स हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्मगलिंग रोकने के लिए अफसरान की खिदमत ले ली। एयरपोर्ट ट्रैफिक पर 7 कस्टम्स इंस्पेक्टर्स की सरबराही में टीमें तश्कील। हर टीम को हफ्ते में 1 दिन के लिए 12 घंटों पर मुश्तमिल ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें, कस्टम्स हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्मगलिंग रोकने के लिए अफसरान की खिदमत ले ली। एयरपोर्ट ट्रैफिक पर 7 कस्टम्स इंस्पेक्टर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गई। हर टीम को हफ्ते में 1 दिन के लिए 12 घंटों पर मुश्तमिल ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप आमद DIG लियाकत अली मलिक ने विजिट करवाया और ब्रीफिंग दी। बिलाल सदीक कुमियाना का कत्ल, इक़दाम कत्ल, शूटर्स और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए क्या हिदायत की गई हैं? जी बिल्कुल, CCP लाहौर बिलाल सदीक मैंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप का दौरा किया है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर के अपने डायरेक्टर लेक्चर मलक, इसके अलावा SP एडवन इमरान करामल बुखारी, SP साउथ तावान फुलवान और दीगर अफसरान ने उनका IG CCP लाहौर का इस्तकबाल किया। DIG के अपने डायरेक्टर मलक ने नए तमीर होने वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर के विजिट के जो करवाया और CCP लाहौर को जो है वो ब्रीफिंग भी दी। CCP लाहौर का कत्ल, इक़दाम कत्ल, शूटर्स और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी DIG को हुक्म दिया। लाहौर पुलिस जराइम पेशा मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसे बेकार है, ये कहना था CCP लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना का। बिलाल सदीक कुमियाना ने मुझे कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर क्राइम फाइटर और इसके अलावा DIG क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लेक्चर मलिक सरबराही में काम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि मजीद काम करने की भी CCP लाहौर ने जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को हदायत जारी की। इस वजह से CCP लाहौर का कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और एहलकारों की जो हौसला अफजाई है वो महकमा पुलिस का अहसन रवायत है। उनका मजीद कहना था कि मेहनती फर्शनाश और काबिल अफसरान एहलकार पूरी फोर्स के लिए मशले रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर की कारकर्दगी के लिहाज से मैंने कहना था कि उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर जा रही है। CCP लाहौर ने लाहौर पुलिस को मजदूर शहर के बावजूद भी हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए क्या रहने की हदायत जारी की। शहरी को जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
DIG آرگنائز کرائم یونٹ ملک ریاکر کہنا تھا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. تمام ان کا کہنا ہے کہ جو تمام یونٹ ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے, خاص طور پر شوٹرز کے حوالے سے اور جو ڈکیٹ گینگ ان کے حوالے سے DIG یہ کہنا ہے کہ CI یونٹ ہے وہ بہترین پرفارمنس دے رہا ہے. بہت شکریہ مدثر حسین. آپ کو بتائیں LWMC آپریشن ٹیمیں چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک. شہر لاہور کو سموک فری بنانے کے لیے صفائی آپریشن بلا تعطل جاری. اہم شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل تینوں شفٹوں میں جاری ہے. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سکریپنگ کے ساتھ ساتھ پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران, بتائیے گا. عمران سے بھی اس بارے میں مزید جانیں گے. آپ کو آگاہ کریں LWMC آپریشن ٹیمیں چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک. شہر لاہور کو سموک فری بنانے کے لیے صفائی آپریشن بلا تعطل جاری ہے. اہم شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل تینوں شفٹوں میں جاری ہے. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سکریپنگ کے ساتھ ساتھ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. LWMC آپریشن ٹیمیں چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک ہیں. شہر لاہور کو سموک فری بنانے کے لیے صفائی آپریشن بلا تعطل جاری ہے. اہم شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل تینوں شفٹوں میں جاری ہے. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سکریپنگ کے ساتھ ساتھ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. آج بالکل شہر کی اہم شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل تینوں شفٹوں میں جاری کر دیا گیا ہے. شہر لاہور کو سموک فری بنانے کے لیے صفائی آپریشن بلا تعطل جاری ہے. اسی سلسلے میں LWMC بابر صاحب دین نے باقاعدہ طور پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کے اوقات کار بڑھا دیے ہیں. رات کی شفٹ کے ساتھ ساتھ دن کی شفٹ میں بھی میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل کیا جائے گا. کلمہ چوک, لبارٹی, گلباغ, مین بولیوارڈ, صدیق ٹریڈ سینٹر پر خصوصی واشنگ ایکٹیویٹی مکمل کی گئی ہے, جبکہ کنار روڈ, جے روڈ, مار روڈ, فیروزپور روڈ اور ملیکہ علاقوں میں بھی واشنگ ایکٹیویٹی جاری ہے. بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ لاہور کی 944 چھوٹی بڑی شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ کا عمل جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگ کا عمل بھی جاری ہے. پیڈسٹرین بریجز اور سڑک کنارے میں موجود فٹ پاتھ پر بھی صفائی دھلائی کی یقینی بنائی جا رہی ہے. شہر بھر میں اتوار کے روز بھی کنٹینرز کلیئرنس کا عمل جاری رہے گا. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر صفائی گینگز تینوں شفٹوں میں متحرک ہیں. داخلی خارجی راستوں پر سکریپنگ کے ساتھ ساتھ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے افسران مسلسل فیلڈ میں سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں. شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عمران اکبر, بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے.